अपने दिमाग से, अपने मुंह से नहीं, लेकिन अपने भीतर, अपने गहराई से, अपने पूरे प्राण से उसकी हम प्रशंसा करेंगे। Amen. Are you ready, church? क्या आप तैयार हो? Come on for a few minutes. Come on. कुछ समय के लिए। Father, पिता, we bless your name. हम आपके नाम को धन्य कहते We हैं। thank you that you are a good Father. हम धन्यवाद देते हैं कि आप बहुत अच्छे पिता हैं। Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ of Nazareth. हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता धन्य हो। There is victory in the name of Jesus. यीशु के नाम में जय है। I said there is victory in the name of Jesus. मैंने कहा यीशु के नाम में जय है। There is power in the blood of Jesus. यीशु के लहू में सामर्थ्य The है। blood of Jesus is still fresh. The यीशु blood of का लहू Jesus is आज भी still ताज़ा warm. है। The आज blood भी of गर्म Jesus है। still forgives sins. वो आज भी The माफ blood of करता है Jesus पापों को। still protects us. वो आज भी The हमें blood संभालता of है। Jesus still carries that power. वो आज भी उस शक्ति को लिए चलता है अपने साथ। And if we are born of Him, अगर आप उससे जन्म लिए हैं, that blood still speaks good things about us. तो वो लहू आपके बारे में भली बातें कहता है। That blood still declares that my son, my daughter is righteous. वो लहू आज भी ये घोषणा करता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी पवित्र है, धर्मी है। Amen. Amen. When the enemy tries to bring condemnation, जब दुश्मन दोष लगाने की कोशिश करता है आप पर, look to the blood. तो यीशु के लहू की ओर देखना। That blood still speaks. वो लहू आज भी बातें करता है। Amen. That blood still speaks. वो लहू आज भी बोलता है। And that blood will keep on speaking. और वो लहू बोलता रहेगा। Jesus will keep on declaring before the universe that because I shed my blood, that's why he's righteous. That's why she's righteous. That's why the Bible says, whom God has justified, no one can condemn them. यीशु ने अपना लहू बहाया और उस सृष्टि के सामने वो ये घोषणा करता रहेगा, क्योंकि मैंने अपना लहू बहाया, ये बेटा पवित्र है, ये बेटी धर्मी है, और उसका लहू हमेशा इस बात की घोषणा करता रहेगा। Amen. Amen. When the enemy comes जब दुश्मन आता है to bring condemnation in your heart, आपके दिल पे दोष लगाने के लिए, to tell you you're not doing enough, ये बताने के लिए कि आपको जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहे to हैं, tell you that you have failed in these areas, ये बताने के लिए कि इन क्षेत्रों में आप हार गए, look to the cross. तो क्रूस की ओर देखना। Amen. आमेन। That blood is still warm. वो लहू आज भी गर्म है। Amen. Amen. So hallelujah. Are you ready for the word? क्या आप तैयार हैं वचन के लिए? Before going to the word, let me say something funny. वचन में जाने से पहले मैं कुछ मजाकिया कहना चाहूंगा। Are you ready? तैयार हो? Okay. So one time, this guy, he was really afraid of flying. एक बार एक भाई साहब जिनको उड़ने से बहुत डर लगता A very praying man. है, बहुत प्रार्थना करने वाले, One day the Lord appeared to him. एक दिन प्रभु उनके सामने आए And the Lord said, my son, you have been so faithful. और उन प्रभु ने कहा, मेरे बेटे तू बहुत विश्वास योग्य रहा है, I want to do something for you. Tell me, what do you want? मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ, बता क्या चाहिए। He said, Lord, I'm afraid of flying, but I really want to go to Australia. उन्होंने कहा, प्रभु मुझे उड़ने से बहुत डर लगता है, पर मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ। So would you make a nice highway for me from Delhi till Australia? तो उन्होंने कहा, आप दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया के लिए एक अच्छा हाईवे बना दीजिए मेरे लिए प्लीज। So the Lord told that man. तो प्रभु ने उस So the आदमी Lord से said, son, see, it's unnecessary that I create a highway from Delhi to Australia. Why don't you tell me that I take away your fear? प्रभु ने कहा कि देखो, अगर दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया का हाईवे बनाना हो तो बहुत फजूल है, इससे अच्छा तो मुझे ये कहो कि मेरा डर हटा दो। He said, no, Lord. तो उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, I want a highway from Delhi to Australia. मुझे हाईवे ही चाहिए दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया के लिए। So the Lord said, son, would you like to reconsider it one more time? और प्रभु ने कहा, बेटा दोबारा सोचना इसके बारे में। So he said, okay. उन्होंने कहा, ठीक है। He said, Lord, my wife keeps telling me that I don't understand her. उन्होंने कहा, प्रभु मेरी बीवी कहती रहती है कि मैं उसको नहीं समझता, So give me a heart that I can understand her. तो मुझे ऐसा दिल दे दे कि मैं उसको समझ पाऊँ। The Lord said, do you want a 4-lane highway or a 6-lane highway? तो प्रभु ने कहा, बेटा 4 लेन का हाईवे चाहिए या 6 लेन का हाईवे चाहिए? Okay, all right, so you can be seated. आप बैठ सकते हैं अपनी जगह पर। The Lord knows what we are capable of. प्रभु को पता है हम क्या क्षमता रखते हैं। Amen. So the word that I want to share today is speak the word only. और जो वचन आज मैं बांटना चाहता हूँ वो है, केवल वचन की ही घोषणा करें। See, we all have been guilty of looking for answers, for solutions here and there.
हम सब लोग इस बात के दोषी हैं कि अपने जिंदगी की बातों के लिए समाधान यहाँ वहाँ तलाशते हैं. But I want to tell you this morning that the word of God is your answer. लेकिन आज सुबह मैं आपसे एक कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए उत्तर है. Does not matter what you're going through, फर्क नहीं पड़ता आप किस बात से गुजर रहे हो, the answer is the word. उत्तर वचन ही है. Amen? So we'll just pray and go into the word. तो हम प्रार्थना के वचन में जाएंगे. Heavenly Father, we thank you for your written word. स्वर्गीय पिता, आपके लिखित वचन के लिए धन्यवाद. We thank you for your precious Holy आपकी Spirit. कीमती पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद. Thank you for the anointing that is in the house. धन्यवाद उस अभिषेक के लिए जो इस घर पे मौजूद है. Thank you, Father, धन्यवाद that the पिता word will be sown in good grounds कि आपका वचन अच्छी भूमि पर बोया जाता है and will produce great fruit. और वो अच्छे फल लेकर आएगा. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. आमेन. All right, open your Bibles with me. Let's open it to Matthew chapter 8. We will read from verse 5. तो अपनी बाइबल मत्ती 8 पर खोले, हम 5वीं आयत से पढ़ेंगे. Matthew chapter 8 verses 5. मत्ती 8 उसके 5 से. Now when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him, pleading with him. और जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार उसके पास आकर उससे विनती करने लगा, saying, Lord, my servant is lying at home paralyzed, dreadfully tormented. कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है, लकवे का मारा बहुत दुखी पड़ा है. And Jesus said to him, I will come and heal him. और यीशु ने उससे कहा कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that you should come under my roof, but only speak a word and my servant will be healed. सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा. The centurion was telling Jesus that you don't need to come, you just have to release a word. वो सूबेदार यीशु से कह रहा था कि प्रभु, आपको आने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप एक वचन कह दें. Amen. आमेन. And Jesus marveled at the centurion's faith. और यीशु हैरान हो गए इस सूबेदार के विश्वास को देखकर. A great faith is a faith that understands how the word works. एक महान विश्वास वो है जिसको ये पता है कि वचन क्या काम करता है. Amen. If you would only know अगर आपको केवल इतना पता लग गया that our labor in the kingdom is to just find the spoken word of God. कि राज्य में आने के बाद जो हमें मेहनत करनी है वो बस इतनी करनी है कि जो बोला गया वचन है वो खोजना है. Amen. The breakthrough that you're looking for, जो छुटकारा आपको the चाहिए, healing that you're looking जो for, चंगाई आप चाहते the हैं, deliverance that you're looking जो for, आजादी चाहते the हैं, promotion that you're looking जो for, तरक्की चाहते हैं, the prosperity you're looking for, जो समृद्धि चाहते हैं, it's in the word. वो सब कुछ वचन में छुपी है. It's not in a bottle of oil, तेल की बोतल में नहीं है, it's not in a bottle of water, पानी की बोतल में नहीं है, it's not in any man's hand, किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है, it's in the word. लेकिन वो वचन में छुपा है. Amen. And if you can learn to dig deep and take out that word which is for you, और अगर आप ये सीख गए कि इस वचन के गहराई में जा करके उस खजाने को निकालना जो आपके लिए रखा है, that word will not go void. वो वचन कभी खाली नहीं जाएगा आपके जीवन से. Amen. So many people are looking for so many things. बहुत से लोग बहुत कुछ तलाश रहे हैं. All we need is a word. हमें सिर्फ उसका वचन चाहिए. Amen. And this centurion knew that. He said, Jesus, if you would only speak a word. और इस सूबेदार को ये बात पता थी, इसलिए उसने कहा, यीशु, केवल अगर आप वचन ही कह दोगे. Amen. आमेन. If you would only speak a word, my servant would be healed. अगर आप केवल वचन बोल दोगे तो मेरा नौकर ठीक हो जाएगा. If we would only learn अगर हम केवल ये सीख गए to receive the word of God by faith. परमेश्वर के वचन को विश्वास से ग्रहण करना. You know that every promise in the word of God, God has given it for you. आपको पता है परमेश्वर ने अपने वचन में हर एक वादा आपके लिए ही दिया है. But it will not happen automatically. We will have to learn to possess it by faith. लेकिन वो अपने आप पूरा नहीं होता, हमें सीखना पड़ेगा विश्वास से उस वादे पर कब्जा करना. Amen. Amen. That's why we come to church. इसीलिए हम कलीसिया आते A church is not a religious building. हैं. कलीसिया कोई धार्मिक जगह नहीं है. A church is the educational institute of the kingdom. कलीसिया राज्य के द्वारा रखा गया पढ़ाने और प्रशिक्षित करने के लिए एक इंस्टीट्यूट है. Amen. Where the children of God are trained so that they can walk
from victory to victory to victory to victory. जिसको परमेश्वर पिता ने इसलिए रखा है ताकि वो परमेश्वर के बेटों और बेटियों को सिखाए कि कैसे वो जय में अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में जय में जी सकते हैं. Amen. Church, if you will only understand that, and if you can only get that our answer is in the Word. अगर आप केवल ये समझ गए कि हमारा जो उत्तर है, जो जवाब हम ढूंढ रहे हैं, वो वचन ही में मिलेगा. When you open your Bible, when you read Genesis, the way God introduces Himself is a creator God. In the beginning, God created heavens and the earth. जब आप उत्पत्ति से पढ़ना शुरू करते हैं, जब परमेश्वर ने अपना परिचय दिया तो उसने एक रचनात्मक परमेश्वर के रूप में अपना परिचय दिया, ये कहते हुए कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की. And how did He create? और कैसे बनाया उसने? He spoke. उसने बोला. He spoke the word. उसने वचन को बोला. Amen. आमेन. As our God is a creator God because He still speaks. हमारा परमेश्वर आज भी रचनात्मक है क्योंकि वो आज भी बोलता है. Amen. And whatever you see around you, He created everything by speaking. और जो कुछ आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं वो सब कुछ उसने बनाया बोल करके. Get it? लेकिन हम ये नहीं समझते. We think our words mean nothing. हमें लगता है हमारे शब्दों की कोई मूल्य थोड़ी है, कोई कीमत थोड़ी है. Before the words were used for communication, words were used for creation. इससे पहले कि शब्दों का इस्तेमाल बातचीत करने के लिए किया जाता, शब्दों का इस्तेमाल रचना करने के लिए किया गया. Amen. We think it's just noise creating some vibration in our eardrums. No, no, no. Words are very powerful in the spirit realm. हमें लगता है केवल कुछ आवाज हो रही है, कुछ सुनाई दे रहा है क्योंकि कोई कुछ कह रहा है, लेकिन शब्दों की बहुत सामर्थ्य है आत्मिक दुनिया में. See, we think the answer to our healing is in a bottle of medicine. The centurion knew that the answer to his servant's healing was a spoken word. हमें लगता है कि हमारी चंगाई का जो रहस्य है वो एक शीशी में एक दवाई की गोली में बंद है, लेकिन इस सूबेदार को पता था कि उसके नौकर की चंगाई का जो रहस्य है वो बोले गए वचन में छुपा है. Amen. We always want something tangible. Give me something so that I can know. But Jesus said this centurion's faith is great because he understood the power of a word that is released under the unction of the Holy Spirit. हम हमेशा तलाशते हैं कि कुछ छूने के लिए हमें मिल जाए, जिसको हम कुछ ठोस, जिसको परख कर हम कह सके कि हाँ इससे हो जाएगा. लेकिन इस सूबेदार ने उस वचन पर, उस बोले गए वचन पर भरोसा कर लिया, इसीलिए उसका विश्वास महान गया. And you know what is the amazing thing? आपको पता है अद्भुत बात क्या है? This centurion didn't know that Jesus is the Son of God. इस सूबेदार को ये नहीं पता था कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है. He didn't come to Jesus as a Son of God. He knew Jesus as the prophet, as the man of God. वो यीशु के पास इसलिए नहीं आया था कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन इसलिए कि यीशु एक भविष्यद्वक्ता है, ये सोचकर. Amen. Look around you. अपने आसपास देखें How are blessings invoked? कैसे आपके जीवन में आशीषें काम करती हैं. Through speaking. बोलने के द्वारा. How did Isaac bless Jacob? इसहाक ने याकूब को कैसे आशीष दिया? He spoke. उसने बोला. There is something that Jews understood that we don't understand. कुछ तो है जो यहूदी लोग समझते थे और हम नहीं समझते. God bless you has become such a cliche. प्रभु आपको आशीष दे एक कहावत बन गया है. Sometimes people use it when they're offended. कई बार जब नाराज होते हैं लोग तब इस्तेमाल करते हैं उसको. Oh, God bless you. प्रभु तुझे आशीष दे. Oh, God bless you. प्रभु तुझे आशीष दे. We say it as if it's nothing. हम ऐसे कहते हैं जैसे कोई मतलब ही नहीं है इसका. But blessings carry great weight in the spiritual realm. लेकिन आशीषों का बहुत भारी वजन है आत्मिक दुनिया में. When a mom and dad जब एक माँ बाप start to bless their children, अपने बच्चे को आशीष देना शुरू करते हैं, something happens in the spiritual realm. आत्मिक दुनिया में कुछ बहुत भारी होता है. Amen. Do you know the power of words? क्या आप शब्दों की सामर्थ्य को जानते हैं? When John the Baptist had to be born, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म होना his था, father Zechariah, who was a high priest, उसका पिता जकराया जो महायाजक था उस समय, he didn't believe. उसने विश्वास नहीं करा कि उसको उस बूढ़ी उम्र में बच्चा हो सकता है. He was doubting. वो शक कर रहा था. So God had to shut his mouth so that John the Baptist could be born. तो परमेश्वर को जकराया का मुंह बंद करना पड़ा जब तक उसका जन्म नहीं हुआ, उसके बेटे का, जॉन द बैप्टिस्ट का. For many people, their miracle has been aborted because of their big mouth.
कई लोगों की जिंदगी में जो काम पूरा हो जाना चाहिए था, जो चमत्कार उनको मिल जाना चाहिए था, उनके बड़े मुंह की वजह से नहीं मिल पाया, because they keep speaking what God doesn't speak about them. क्योंकि वो हमेशा वो बोलते रहे जो परमेश्वर के बारे में नहीं बोल रहा। Let's see a scripture. आइए हम एक आयत देखते हैं। Are you ready? Proverbs 30:32. नीति वचन 30 उसका 32। If you have done foolishly in exalting yourself, or if you have thought evil, lay your hand upon your mouth. यदि तूने अपनी बढ़ाई करने की मूर्खता की या कोई बुरी युक्ति बांधी हो तो अपने मुंह पर हाथ रख। God is saying, if you are thinking evil in your heart, बाइबल कह रही है अगर तू अपने दिल में कुछ बुरा सोच रहा है, put a hand on your mouth, अपने हाथ को अपने मुंह पर रख दे, because sooner or later क्योंकि आज नहीं तो कल that evil thought is going to become evil word. वो बुरा विचार आज नहीं तो कल बुरे शब्द बन सकता है। And the Bible says और बाइबल कहती है that you are in bondage because of the words of your mouth. बाइबल कहती है तू शिकंजे में फंसता है अपने ही शब्दों के कारण। Some people are like, oh, Satan is so powerful. Satan isn't that powerful. He cannot do anything unless he gets our agreement. और कुछ लोग कहते हैं शैतान बहुत शक्तिशाली है, शैतान ये करता है वो, लेकिन शैतान बिल्कुल शक्तिशाली नहीं है। वो कुछ नहीं कर सकता जब तक हम सहमत ना हो उसके साथ जो वो करना चाहता है।